The topic under discussion for today is genetics and biotechnology. In this lecture, we will discuss other techniques which are involved in the manipulation of genes related to biotechnology field. And in the last lecture, we end up our discussion till the screening of the plasmids, which is containing the recombinant DNA in it. Yeah, and moving toward the further techniques and approaches available with us, we will discuss in this today's lecture. But before going to that, this lecture is prepared from Molecular Biotechnology by Glick 4th edition and Biotechnology from J. Smith 5th edition. So you can consult these book as well for further any confusion, any problem in this course. And of course, I am available as well. You can ask your questions with me and your confusions with me. So let's discuss today's lecture. So after starting where we've left, that different screening methods we have learned about that, about the screening of cloning vectors, which is having your recombinant construct, blue white screening after that. But here we need to discuss about the methods of gene transfer, how the gene is transferred once the plasmid has been prepared. It has a construct recombinant DNA in it. Then what are the options available with us? How can we transfer that setup into its host? We have different methods available with us, like transformation, transduction, electroporation, and mechanical particle delivery or biolistics, or First of all, which we call as transformation. gene gun. Transformation is So we the will direct discuss each uptake of the of method DNA by the in cell detail from its here. environment. It means that the cell has the capability. It is basically exploiting the inherent capacity of a host cell to take in uh, different plasmid in it, and it also depicts the inherent property of the plasmid, that they can enter the host cell who has compatibility with it, or who has the tendency to take up, to allow different independent machinery into itself. So this is the manipulation of inherent properties of microbes and the plasmid itself. So there are two parameters which can be considered. One is transformation frequency and other is transformation efficiency. These two are used to assess the success of DNA transformation, whether the recombinant DNA plasmid is taken up by the cell or not. So the transformation frequency is the ratio of the transformed cell to the total number of treated cell. If the total, suppose the total number is 50 of the host cell, and how many of those 50 uptaken the transformed plasmid, or recombinant plasmid in it. And the other is transformation efficiency. Transformation efficiency is the number of transformed cell as a function of the amount of DNA that was originally added to the cell. Efficiency is that the number of transformed cell, what if the amount of recombinant DNA is taken up by some host cell, then we can assess the presence of the recombinant DNA in a host as transformation efficiency. Generally, transformation is an inefficient process because not all the plasmids contain the recombinant DNA in itself, and not all the hosts can uptake only the recombinant plasmid, but they can allow other plasmid which have no inserts in them. They also taken up by the host. So it's an inefficient process, and after transformation, most of the cell have not acquired a new plasmid, but they acquire a plasmid which is a simple one, which is having no
no insert in them. So transformation is an efficient process. In this picture, you can see that E. coli is a host cell, and we have a recombinant plasmid with us. So recombinant plasmid is taken up by the E. coli. As plasmid is an extra extra chromosomal part, independent part. So E. coli cell allow that plasmid to enter. It's a simple thing, but there's also procedures available in which the chemical treatment is provided to the cell, to the host, to allow to make it allow different molecules, different plasmids to enter in. Next is transduction. Transduction is the process in which DNA transferred from one organism to another by way of a carrier or vector system, and if acceptable, the new DNA will be cloned with the propagation of the host cell. In this type of gene transfer, the one organism, like if you are using bacteriophage plasmids, bacteriophage lambda as a vector, cloning vector, then this recombinant construct will be shifted to another host, yeah, will be shifted to its bacterial host as the bacteriophage infect that host and transfer its genetic material. Obviously, that genetic material, it's not is not of itself, but it is a recombinant one. So it transferred the genetic material from bacteriophage, the genetic material which is recombinant in nature, by the manipulation method we discussed earlier. That bacteriophage is then transferring the DNA uh, to another organism, which is E. coli or any other bacterium. So bacteriophage act as a carrier for that system. So this process is called transduction. There is another process which we call conjugation. Conjugation is the property of microbe itself, in which they transfer the materials from one microbe to another microbe with the formation of a connecting tube between them. The two microbes, they come closer together and they establish a connection with each other in the form of a tube, and then they transfer the DNA from there, or information from one cell to another cell. Likewise, if we are using such microbes which have the capability of transferring material with conjugation. So conjugation is one of the method of transferring gene from one organism to another, whether it is the same species or a different species. Here in a picture, you can clearly see the transformation and conjugation and transduction. In transformation, lysis of donor cell releases DNA into the medium, and there is recipient cell which take up this donor DNA with simple transformation. About the conjugation, the donor cell which is having a plasmid in it, and the recipient cell which have its original DNA and nothing else. So these two molecules, the microbes, they close together, come close together, develop a tube within between them, and then the plasmid is transferred with that connection or with that tube to another host. So this is a conjugation method. And in transduction, you can see the donor cell bacteriophage infect a cell and manipulates its DNA, or if the DNA is added in them, which is a recombinant one. So the lysis of the donor cell will happen, and that donor cell DNA is packaged and released in bacteriophages. There is another recipient cell, the bacteriophage infect the cell, and the DNA, donor DNA, is transferred when phage particle infect recipient cell. So in this manner, these methods takes place. Next, another method available for gene transfer is electroporation. Electroporation is a process of creating pores, transient pores in the cell membrane with the application of electric field.
and that such pores are able to allow uh, foreign molecules like DNA, RNA, antibodies, drug into the cell cytoplasm. With the development of this technology, there is again the synergy of different fields like biophysics, bioengineering, cell and molecular biology. This is again making the discipline of biotechnology as a multidiscipline, because you are going to having the help of these other sciences as well. So this technique is now widely used to create transgenic microorganisms, plants and animals, and is being increasingly used for applications of therapeutics and gene therapy. This is from this picture, it is clear to you that what is electroporation and what is the simple transformation or chemical transformation. This is the chemically competent cell in the cell which is make competent with the help of some chemicals, and the chemical in most cases is calcium chloride. Calcium chloride has the ability to create some pores in the membrane of microbe, and then the recombinant plasmid, they are incubated with such microorganisms, and with the help of the heat shock these pores become more open, and the plasmid is taken up by the cell, and now in the recovery phase calcium chloride is removed and the temperature shock is reverted. Then the cell membrane again fill up these pores and sees its boundaries for any further intake. And it is the electroporation process, electrocompetent cell, the pulse, the electric field is already given to them slightly, and after the incubation with the nuclear plasmids there is again electric shock, a brief shock is given to the cell, and there is again pores become evident or visible, the plasmids get enter the cell, and then the recovery phase, all kind of shocks and all other helpers are removed from this cell, and the cell seal its cell membrane, and whatever the intake is happened now. Next is mechanical particle delivery. This is basically a gene gun method which deliver DNA on microscopic particles into the target's tissue and cell. This process is increasingly used to introduce new genes in a range of bacteria, fungal, plant, and mammalian species, and become the main method of choice for genetic engineering of many plant species, including rice, cotton, wheat, corn, and soybean. In this method, the DNA, you can say the recombinant DNA is coated with on the gold particles, and that is immobilized, or you can say fixed on the plastic disc. Then gene gun barrel, it release high energy particles from the gene gun. The disc is stopped by a screen, and the gold particles containing the DNA, they are basically, and in this picture you can see the particles are sprinkled on the target cell, and target cell then take up the DNA in it. So in this manner, gene gun work. Next technique is the polymerase chain reaction. This is the main in vitro technique for the amplification of region of DNA. This is one of the very promising technique which make it possible for the target DNA to be get in amplified amount. So this is one of the mainstay of recombinant DNA technology, polymerase chain reaction. All of you are well aware of this method. You have learned many times PCR from different sources. So I am just giving you a brief introduction here again. It's an amplification technique of a particular region of DNA and developed by Carey Millis in 1980s.
It is basically a self pre-amplification of technique. Before this technique, you are bound to, you are dependent on some microbes for the synthesis of DNA of interest. आप उसके अंदर insert डालेंगे, वो multiply करेगा, तो you will be having number of copies, but all those copies are cell bound. So PCR is the technique which is self pre-amplification. You don't need a cell, you just need DNA and the required reagents for it, and you will be having multiple of copies after 2 to 3 hours. So what will happen in this PCR, that double-stranded DNA of interest is denatured. The strands are separated. Each strand is then allowed to hybridize with the help of the primer, and the primer template duplex is used for synthesis. Primer is in the duplex form. The three main steps are involved in PCR: denaturation, annealing, and extension, and they are repeated again and again to generate multiple forms of target DNA. And the primer extension product synthesized in one cycle serve as template of the next cycle. So the product of first one cycle is the template for next cycle. And what we will be needing in this technique, we need target DNA, which is of obviously of certain lengths of certain base pairs. 100 to 35,000 base pair in length is, it's just to give you an idea. Two primers, and they are typically short. In Theoretically, we say this is a 10 base pair primer, but it more or less 10 or 20 base pair primer, but short single strand oligonucleotide which are complementary to the outer region of the known sequence. They are the sequence specific of the particular region which we want to amplificate. And apart from these buffer is required, which is tris buffer, and which is containing KCl and MgCl2. And you require 4 deoxyribonucleotides, DATP, or collectively called DNTPs. And DNA polymerase is needing, which can withstand the temperature of 95 degrees centigrade, and it is a hyperthermophile and Thermus aquaticus. From that microbe we isolate, the commercial isolation is basically done from that microbe, and the DNA polymerase is available which can withstand such high temperature. And apart from that, you need PCR tubes which are manufactured from polypropylene, and they are ultra thin wall, is helpful for efficient heat transfer. They are autoclavable, and they are DNAs and RNAs free when they are manufactured. So these are the properties of PCR tubes as well. So what is the copy number of every cycle? After every cycle, after first cycle, you get the two copies, and now the two copies will be the substrate, or you can say will be the target of for the primer and the polymerase, DNA polymerase. Then these two copies, when going through a second cycle, they will make four copies. And when the third cycle is after third cycle, you will be having eight copies. So every time the copy number is being doubled. So you can say that after four cycle there are 18 copies, and five cycle 32, and after eight cycle you have 25 copies. So after every cycle the number is getting multiple of the available copies. So after 20 or 30 cycles, you have enough amount, a very good amount of your desired DNA, and that is basically the specific amount, not the inspecific. So in this picture, you can see you have a large amount of DNA molecule. You extracted that DNA from a source, and then you are having primer which are specific to this small particular region. So after PCR, you will be having not this DNA. This is degraded and denatured, but this DNA, only this portion of DNA will be having a large amount after PCR. And primer, this is the strand, that is the part which is need to be amplified, and with the heat this strand it will open up, primer will add it to them, and they keeps on adding with nucleotide, and then DNA polymerase play its part,
and it to complete the synthesis of DNA of this particular strand. And then after first cycle you are having two copies of this small region. And now this PCR product is the substrate for the next cycle, and this keep on multiplying with the each cycle. So the number of copy number I discussed on this slide earlier, it can double, and after 20 or 30 cycle you will be having all in all this amount of product with you, and other residents which can easily be removed from the PCR product. So this is the time and temperature graph. You can first of all you will do a denaturation step at above 90 degrees centigrade. It's a brief for 1 minute, and then the temperature is shifted toward the second step, and now the temperature is around 50 to 60 according to the requirement of the your DNA and the primers. So annealing step in which the DNTPs come closer to the strand, the single strand, denatured strand, and primer get attached, and then the next step in which the synthesis will take place. And the first after the first cycle again this is repeated, the PCR product again denatured, and then it's allowed to get annealed with the primer and other DNTPs and DNA polymerase. And now then again it moves to higher temperature, and it make the strands. So in this manner, this procedure will go on, and after 2 to 3 hours, the timing of the PCR depends on the length of the DNA, length of the sequence which you are going to multiply in the PCR product. If the um, you can say if your DNA strand is of larger base pair, and you will be amplifying a larger chunk of DNA, then it will take more time than the small parts of the DNA to be amplified. But in any case, 4 hours are enough, and the PCR run for 4 hours approximately. Next is the application of PCR. You are very well aware of these applications. They are used for molecular biology procedures and genetic engineering procedures on daily basis. Apart from these usage, infectious and parasitic disease diagnosis utilize PCR. Human genetic disease diagnosis required PCR. Forensic validation even require PCRs. And apart from that, plant and animal breedings they require PCR. Environmental monitoring, for environmental monitoring you require PCR. And even the DNA fingerprinting and DNA fingerprinting and the PCR is of that type is being is you can now challenge in the court of law if the DNA fingerprinting fail to relate some individuals. So it is now being challenged. Next is gene library. This is one of the technique with which you can able to collect different fragments of a DNA of an organism. So gene libraries are very important. What is gene library? First of all, what is gene library? Gene library is basically a collection of cloned restriction fragment of the DNA of an organism. There are two types of gene libraries, simple genomic libraries and CDN libraries. What is the purpose of these libraries? There is an objective for every thing we done. So the fundamental objective of the molecular biotechnology is the isolation of the genes that encode for proteins useful for industrial, agriculture, and medical applications. So it is very you can say helpful if you create a library of different organisms and their fragment. Obviously they are you will be having library separately of every organism, and that library is not a very small or very not limited to
one one you can say one outcome. These library are very vast and very huge in number, even for a single microorganism. So, in prokaryotic organisms, structural genes form a continuous coding domain in the genomic DNA, whereas in eukaryotes, the coding regions, exons of the structural genes are separated by non-coding region introns. So, consequently, different cloning strategies have to be used for cloning prokaryotic and eukaryotic genes. Yeah, due to the huge, you can say, DNA of eukaryote, which is having exons and introns as well. So the strategy for cloning that eukaryote or that DNA is different from prokaryotes, because in prokaryotes there are no such intron exon type of thing. This is a continuous domain in the genomic DNA. So you will be see that there are different methods of creating a gene library for prokaryote and eukaryote. So how the genomic DNA libraries are created? Basically, they are the collection of DNA fragment from particular species. बेसिकली जो जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की वजह से हम एक डीएनए मॉलिक्यूल्स को जो है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में क्लीव कर सकते हैं। बेसिकली ये जो जीनोमिक लाइब्रेरी बन रही है इसके अंदर आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की प्रॉपर्टीज़ को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, आप उनको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एंडोन्यूक्लियसेस हैं और वो एक ही तरह के डीएनए को मुख्तलिफ फ्रेगमेंट में काट सकते हैं। तो जब वो उनको मुख्तलिफ फ्रेगमेंट में काट सकते हैं तो उन फ्रेगमेंट्स को आप लेकर मज़ीद क्लोन कर सकते हैं प्लाज्मिड में, और प्लाज्मिड से वो किसी माइक्रोब के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं और फिर वो आइडेंटिफाई भी हो सकते हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ा सेट डेवलप हो जाता है जिसके अंदर आपको स्क्रीन कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर जीन। ठीक है, तो इसमें आप कर क्या रहे हैं कि आप जो भी जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए ले रहे हैं उसको आइसोलेट करने के बाद उसको चॉप डाउन करवा रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के साथ, और फिर उनके सुटेबल वेक्टर्स के अंदर उनको क्लोन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है सब डिवाइडिंग जीनोमिक डीएनए इनटू क्लोनेबल फ्रेगमेंट और फिर उसको इंसर्ट करना किसी वेक्टर के अंदर और फिर किसी होस्ट सेल के अंदर, इसे कहते हैं क्रिएटिंग अ लाइब्रेरी या क्लोन बैंक या जीन बैंक या जीनोमिक लाइब्रेरी। So, a complete library contains all of the genomic DNA of the source organism. तो किसी सपोज ई कोलाई की अगर बात करें तो ई कोलाई की जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी बनाने के लिए आप ई कोलाई के जो डीएनए हैं उसको आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से क्लीव करवाएंगे, उसके मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स बनवाएंगे और उन मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स को आप क्लोन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर इनटू सम अदर होस्ट, और फिर आप उसको सेव कर लेंगे अपने पास उस इंफॉर्मेशन को, ताकि फॉर द नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ई कोलाई के किसी पर्टिकुलर जीन की ज़रूरत हो तो आप उस जो आपके पास इकट्ठी हुई लाइब्रेरी बनी हुई है उसके अंदर से फिर आप मास्टर कॉपी डेवलप करवा के उसके अंदर से स्क्रीनिंग कर सकते हैं। वो हम सारा डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे कैसे होता है ये काम। सो जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए करना क्या पड़ता है कि आपको 4 कटर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से पार्शियल डाइजेशन करानी पड़ेगी। आपने कंप्लीट डाइजेशन नहीं करानी। कंप्लीट डाइजेशन विल एंड अप इनटू 2 और 3 फ्रेगमेंट्स, बट पार्शियल डाइजेशन विल गिव यू मोर देन 2 to 3 फ्रेगमेंट्स, एंड द चांसेस ऑफ, या आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीनोम और जीन्स of different regions is increased when you use partial digestion. So partial digestion is carried out. How this partial digestion will be carried out? It carried out at low concentration of restriction endonucleases and shortened incubation time. तो पार्शियल डाइजेशन कराने के लिए जो हमने पहले पढ़ी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के बारे में, तो हमने उसके अंदर देखा था कि आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है ना आप उसको इंक्यूबेट करते हैं और फिर आप निकालते हैं उसको। ठीक है, ज़्यादातर ओवरनाइट इंक्यूबेशन कर देते हैं। ठीक हो गया, ताकि कंप्लीटली अच्छी तरह से वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जो है वो कंप्लीटली क्लीवेज हो जाए और आपके पास ज़्यादा जो है मिक्स प्रोडक्ट्स ना बने। लेकिन जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट कराने के लिए आपको थोड़े थोड़े टाइम के लिए और थोड़ी अमाउंट ऑफ जो है एंजाइम यूज़ करनी पड़ती है।
ताकि फ्रेगमेंट अच्छा अगर आप जो है ना कंप्लीट डाइजेशन कराते हैं तो आपके पास फ्रेगमेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली आप कह लें 2 या 3 पीसेस बनते हैं जिनको आप आगे मज़ीद यूज़ करते हैं। लेकिन लाइब्रेरी के अंदर आपने ऐसा नहीं करना, आपने इसको शॉर्ट टाइम के लिए इंक्यूबेशन देनी है डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के साथ डीएनए को, ताकि आपके पास ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स या फ्रेगमेंट्स बन सकें। सो इस चीज़ को इंश्योर कैसे करते हैं कि आपकी लाइब्रेरी के अंदर मैक्सिमम जो है ना डीएनए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का वो मौजूद हो। इसको इंश्योर इस तरह से किया जाता है कि अगर आपकी जीनोम की जो सा भी साइज़ है ना, उससे उससे 3 to 4 टाइम्स बड़ी आपकी लाइब्रेरी बनाई जाती है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ डीएनए होंगे जिनके इंसर्ट्स जो हैं वो रिपीट भी हो रहे होंगे। मतलब अब जब आप डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनवाते हैं ना, तो हर फ्रेगमेंट के अंदर वहाँ पर कोई वो तो नहीं लगा हुआ मिरर के जी बस यहीं तक कट करेगा, ये इतना सीक्वेंस इस जीन का, ये इतना सीक्वेंस अलग जीन का, ऐसे नहीं हो रहा। आपके पास फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं वेरिएबल लेंथ के। हो सकता है आपके पास एक जीन जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए एक दफ़ा की ब्रीफ कटिंग के साथ, लेकिन हो सकता है कि वही जीन एक दफ़ा पूरी की पूरी इंटैक्ट होके एक क्लोन के अंदर आ जाए। तो आपके पास ये बेसिकली बहुत आप कह सकते हैं कि एरर प्रोन मेथड कह सकते हैं इसको, कि आपको जब स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी तो आपको अगर कोई ऐसी जीन ढूंढ रहे हैं जो कि बड़ी लेंथ की है, तो वो एक जगह आपको नहीं मिलेगी। वो उसके लिए आपको 2-3 अलग अलग स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, अलग अलग आप कह लें क्लोन्स को चेक करना पड़ेगा, ताकि आप वो एक पर्टिकुलर जीन उसमें से अचीव कर सकें। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आप इंश्योर कैसे करते हैं कि आपका पूरा जीनोम जो है वो उसकी लाइब्रेरी बन गई है या नहीं बन गई। तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको कहा कि आपका जो डीएनए है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी टोटल लेंथ के हिसाब से आप इसको सेट करते हैं, और आपकी जो लाइब्रेरी होती है उसकी जो आप कह लें अमाउंट है, जो लाइब्रेरी की आपकी क्या कहें इसको क्वांटिटी है, वो आपके डीएनए फ्रेगमेंट से कितने 3 से 4 गुना बड़ी होती है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर आपके पास कोई जीनोम साइज़ है 4 × 10⁻⁶ बेस पेयर का, तो आप अगर हर इंसर्ट की लेंथ एवरेज लेंथ लगाते हैं कि हमारे पास हर इंसर्ट जो है वो 1000 बेस पेयर का होना चाहिए, तो आपके पास 12,000 क्लोन्स बनेंगे। ठीक है, 12,000 क्लोन्स का मतलब है कि 3 फोल्ड कवरेज दे रहे हैं आप, 3 टाइम्स आपकी लाइब्रेरी बड़ी होगी एवरेज साइज ऑफ द जीनोम से। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास यहाँ पर मैं शेयर किया है, ये एक सोर्स डीएनए है सपोज। ठीक है, इसकी ये आप रिस्ट्रिक्शन साइट्स इस तरह से हैं कि इसके इतने फ्रेगमेंट बनने चाहिए। एक फ्रेगमेंट ये बन सकता है, एक फ्रेगमेंट ये बन सकता है, सी अलग बन सकता है, डी अलग बन सकता है। ठीक है, तो ये एक आपकी कंप्लीट एक डाइजेशन के बाद ये 4 फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। तो जब पार्शियल डाइजेशन कराते हैं आप एंडोन्यूक्लियोसिस के साथ, तो हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके से पार्शियल डाइजेशन हो कि सिंपली तो ये है कि जी जो उनकी पर्टिकुलर साइट्स हैं वो उसके ऊपर क्लीव कर दें। ठीक है, ए बी सी डी अलग अलग बने, लेकिन और चांसेस भी हैं, और भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ए और बी, क्योंकि आप टाइम थोड़ा दे रहे हैं, तो हो सकता है ए बी क्लीव ना हो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर अभी एक्ट ना कर, अभी करने वाला ही हो और आपने रिएक्शन स्टॉप कर दिया, तो आपके पास ये 3 प्रोडक्ट बनेंगी। ये भी हो सकता है कि अगर आप और थोड़े टाइम के लिए करें तो सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन हो, ए बी सी इकट्ठी हो जाए और डी अलग हो जाए, या ये भी चांस है कि ए जो है फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाए एंडोन्यूक्लियस की वजह से, और बी सी डी अभी इकट्ठी रहें। या फिर ये भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हैं, आपके पास चांसेस हैं कि जब आप पार्शियल डाइजेशन करा रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए करवा रहे हैं, तो इनमें से कोई से भी फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, जिनको आप बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करके देख भी सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से फ्रेगमेंट्स बने हैं। ठीक है, ये ए प्लस बी फ्रेगमेंट अलग बना है, सी प्लस डी अलग बना है। अब ए अलग हो सकता है, बी सी इकट्ठे हो गए, डी अलग हो सकते हैं, ए बी अलग हो सकता है, और सी डी, मतलब ये आपके पास डिफरेंट रेंज है, डिफरेंट एक प्रोबेबिलिटी है कि पार्शियल डाइजेशन के बाद आपके पास फ्रेगमेंट्स कुछ इस तरीके से एक सोर्स डीएनए के आएंगे।
ठीक है। अब ये एक और पिक्चर में आपके पास ये रेड हैरोज से शो हो रहे हैं जी, ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं एक डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक हो गया। फिर अब आपके पास ये इलेक्ट्रोफोरेसिस पिक्चर है जिसके अंदर ये शो किया गया है कि टाइम का क्या इफ़ेक्ट है। ये वो पहली लाइन है जिसके अंदर आपने कंप्लीट जो अपना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस को सही पूरा टाइम दिया है, जिसमें उसने क्या किया है कि वन टाइम एडिशन है जिसके अंदर वन एक एक आपने एक दफ़ा ऐड किया तो एक ही फ्रेगमेंट बना है आपका। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम थोड़ा कर रहे हैं और एंडोन्यूक्लियस की अमाउंट जो है वो वेरी कर रहे हैं, तो आपके पास डीएनए क्लेवेज जो है उनकी रिजल्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब ये 2 to 5 लेन को अगर आप देखें तो इसके अंदर आपके पास डीएनए क्लेवेज है आफ्टर इंक्रीजिंग एक्सपोजर्स टू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। जितने जितने आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस का एक्सपोजर बढ़ाते रहें, ऑब्वियसली ये सारी रिस्ट्रिक्शन साइट एक ही एंजाइम की नहीं है, ये मुख्तलिफ एंजाइम्स की वजह से हैं। तो आप जैसे जैसे इन एंजाइम्स की का एक्सपोजर बढ़ाते चले जाएंगे, आपके पास फ्रेगमेंट्स की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। आप टाइम कम दे रहे हैं और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस बढ़ाए जा रहे हैं, तो आपके पास फ्रेगमेंट्स जो हैं, या आप कह लें कि आपके वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस जो हैं वो ज़्यादा क्लीव कर करके फ्रेगमेंट्स आपके पास ज़्यादा जनरेट करवा रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि इस तरीके से आपने फ्रेगमेंट्स डेवलप, ऑब्वियसली अब ये हर फ्रेगमेंट जो इसमें से बना है उस हर फ्रेगमेंट को आप पिक करके एक नए क्लोन में और एक नए वेक्टर में डलवाएंगे, नया एक क्लोन बनेगा और उसको फिर आप एक नए होस्ट में डालेंगे, तो आपके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी डेवलप होगी, एक बहुत बड़ा आप कह लें मटेरियल आपको चाहिए, बहुत सारी पेट्री प्लेट्स होंगी, बहुत सारी जो हैं आपके पास रिसोर्स मटेरियल इसके अंदर चाहिए आपको लाइब्रेरी जनरेट करने के लिए। अगर आप बात करें ह्यूमन्स की जीन लाइब्रेरीज़ की, तो ह्यूमन का हर क्रोमोसोम जो है उसके अंदर 100,000 किलो बेसेस होती हैं, 100,000 बेस पेयर्स होते हैं हर क्रोमोसोम के अंदर। तो अगर आप उसको कट करें तो हर फ्रेगमेंट जो है वो 25,000 बेस पेयर का बनेगा। ठीक है। जो कि एवरेज साइज़ बन जाता है 4 KB का। ठीक हो गया। तो ये अगर आपके पास 23 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हों तो टोटल फ्रेगमेंट्स कितने बनेंगे? 75, नहीं सॉरी 57 एंड 5000, यू कैन से 5,75,000 फ्रेगमेंट्स बनेंगे आपके, जो कि हर फ्रेगमेंट जो है जिसमें 4 KB का बनेगा। ठीक हो गया। अब इस तरह की जब लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को फिर बहुत सारे रिसोर्सेज, और यही वजह है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो इतने पता नहीं कितने मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर्स का था, उसके अंदर इतने इन्वेस्टमेंट एज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट वो थी ही इसीलिए कि उसके अंदर बेसिकली उन्होंने हर क्रोमोसोम के ऊपर इतनी एफर्ट की, उसको इतनी क्लीव करवाया, उसके ऊपर इतने रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए, तो वो एक कॉस्टली प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है। ये तो बस मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया है कि अगर ह्यूमन के जो ह्यूमंस की जीनोम लाइब्रेरी या जीन लाइब्रेरी बनी हुई है वो इस तरीके से उनको जो है कंसिडर किया गया है। लाइब्रेरी जब एक बार क्रिएट हो गई है तो उसके बाद उसमें से अपना टारगेट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन मेथड्स होते हैं। उनमें पहला आइडेंटिफिकेशन मेथड है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन का, जिसके अंदर आप डीएनए लेबल्ड डीएनए प्रोब यूज़ करते हैं, जो कि ये जो लेबल्ड हैं ये रेडियोग्राफिक लेबल भी हो सकते हैं और फ्लोरेसेंट लेबल भी हो सकते हैं। ठीक है। इनको आप फिर बाद में आइडेंटिफाई करवा लेते हैं इन फ्लोरेसेंस से या ऑटो रेडियोग्राफी से कि ये कौन से पोर्शन को इसने लेबल आइडेंटिफाई किया है। उसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल स्क्रीनिंग भी होती है प्रोटीन प्रोडक्ट की, ऐसे भी हो सकते हैं आइडेंटिफिकेशन में, और फंक्शनल जिनोमिक जेनेटिक कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड भी हो सकते हैं। सो टॉकिंग अबाउट न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स, ये स्पेसिफिक टारगेट मॉलिक्यूल का डीएनए मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन इसी के अंदर होता ही है कि सिंगल स्ट्रैंड प्रोब होता है जो कि एक न्यूक्लिक एसिड के का होता है, और न्यूक्लिक एसिड इन नेचर ही होता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये अटैच करता है जाके हाइब्रिडाइज करता है उस कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड से जिसका ये टारगेट होता है विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ नॉन कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। मतलब आपके पास जो जीनोमिक लाइब्रेरी है उसके अंदर उसकी किसी भी जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब डिज़ाइन करवाते हैं, जो कि फ्लोरेसेंट लेबल हो सकता है या रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हो सकता है।
P32 या सल्फर 35 के साथ। फिर ये प्रोब बेस्ड टेक्निकल सिस्टम जो है उसमें फिर आप ये मोबिलाइज प्रोब को आइडेंटिफाई करते हैं। ये डिपस्टिक मेथड में भी हो सकता है, ठीक है, मतलब आपकी स्टिक फॉर्मेशन की फॉर्म में भी हो सकता है, जिसके ऊपर आप ये प्रोब जो है इसको आप अटैच करवा सकते हैं। उसके बाद आप अनहाइब्रिडाइज्ड डीएनए को वॉश भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। जिस तरह आपकी सर्जन नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और सदर्न ब्लॉटिंग के अंदर होता है कि आपका जो लेबल्ड प्रोब है वो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस से जाके अटैच कर देता है, बाकी फिर आप अनबाउंड प्रोब को भी और अनबाउंड जो डीएनए है उस वो भी वॉश आउट हो जाता है। ये बाउंड चीज़ जो है इसको फिर आप आगे फ्लोरेसेंस के ज़रिए या ऑटो रेडियोग्राफी के ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, ये जो डिपस्टिक की बात हो रही है जिसके अंदर आप प्रोब को इमोबिलाइज करा देते हैं नायलॉन सरफेस के ऊपर या नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर, तो ये सॉलिड फेज हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से डीएनए चिप्स एंड माइक्रो अरेज जो हैं ये भी इसी की ही आप कह लें मिनिएचराइज्ड फॉर्म है, एक्सटेंशन है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। माइक्रो अरे क्या होती है कि सॉलिड सपोर्ट के ऊपर बहुत ही फाइन इम्प्रिंटिंग हुई होती है सीक्वेंस की, ठीक है। ग्लास स्लाइड के ऊपर सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनकी सब पॉपुलेशन हो सकती है। फिर आप उसके ऊपर जब अपना इंटरेस्ट ऑफ आपकी इंटरेस्ट का प्रोब डेवलप करा के अटैच करते हैं, तो वो जिस जगह से जाके बाइंड होता है उस प्रोब के ऊपर फ्लोरेसेंस अटैच होती है, रेड ब्लू रेड ग्रीन और येलो कलर की वो फ्लोरेसेंस होती हैं, और वो फिर फ्लोरोमीटर में डिटेक्ट हो जाती हैं कि जी ये इस पर्टिकुलर रीजन को जाके इसने बाइंड किया, तो फिर वो उस पर्टिकुलर रीजन की सारी जो है ना जेनेटिक्स ओपन अप की जाती है, तो फिर उससे आइडेंटिफाई होता है कि जी इसने इन जाके बेस पेयर को अटैच किया है, और ये पर्टिकुलर रीजन है जो कि वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जिसके लिए आपने इस जीन को सेलेक्ट किया था या आपने सर्च आउट किया था, ठीक है। माइक्रो अरे चिप्स का बस यही फ़ायदा है कि उसके अंदर आपकी रिसोर्सेज की स्मॉल अमाउंट लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रीनिंग बाय डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में अब हो किस तरह से रहा है। आप सबसे पहले क्या करते हैं कि एक मास्टर प्लेट प्रिपेयर कराते हैं पर्टिकुलर अपने जीनोमिक लाइब्रेरी में से उठा के, तो हर कॉलोनी जो है वो डिपिक्ट कर रही है माइक्रोब्स को विद हैविंग डिफरेंट कंस्ट्रक्ट इन इट, डिफरेंट प्लाज्मिड हो सकते हैं, हो सकता है इसके अंदर ऐसे माइक्रो अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पर ये जो प्लेट पे ग्रोथ कराई जाती है तो यहाँ पर ये स्क्रीनिंग पहले ही हो जाती है कि आप ट्रांसफॉर्म्ड आपने सेल ग्रो किए हैं या नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। तो वो जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होती है या आईपीटीजी की स्क्रीनिंग है वो यहाँ पर अप्लाई करके, तो ओनली ट्रांसफॉर्म्ड सेल जो कि सपोज अगर ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के तौर पे आपने यूज़ किया स्क्रीनिंग के लिए, तो ब्लू वाइट कॉलोनीज़ में से सिर्फ वाइट कॉलोनीज़ को इसके ऊपर जो है दोबारा कल्चर किया जाता है, ताकि और इसको फिर मास्टर प्लेट कहते हैं, ठीक है। हर कॉलोनी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि उसके अंदर आपका क्लोन्ड फ्रेगमेंट मौजूद है, ठीक है। इस सारे जो मास्टर प्लेट की जो आप कह लें प्लान है उसको आपने फिर नाइट्रोसेलुलोज या कोई भी मैट्रिक्स नायलॉन मैट्रिक्स के ऊपर शिफ्ट कराते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र करते हैं सेल को जस्ट बाय इम्प्रिंटिंग। आप ये नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज शीट को इसके प्लेट के ऊपर रख के कंप्रेस करवाते हैं। जब आप इसको उठाते हैं तो कॉलोनीज़ जो है वो एज इट इज़ इसके ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं, उस पर भी रह जाती हैं और इस पर भी शिफ्ट हो जाती हैं। फिर आप इन सेल्स को लाइज करते हैं, इनकी डीएनए को डीनेचर करवाते हैं डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए, और फिर आप अपना जो है ना देखते हैं जी, फिर जो आपके पास पीछे प्रोडक्ट बचती है उसके ऊपर बाउंड डीएनए जो है वहाँ पर मौजूद होता है। सेल लाइज़ आपने करवा दिया, उसी के ऊपर इसी के ऊपर डीनेचर डीएनए करा दिया आपने, ठीक हो गया। फिर आप अपना प्रोब ऐड करते हैं जो कि रेडियो लेबल है या फ्लोरेसेंट लेबल है। ये प्रोब जो है फिर अटैच करेगा अपने पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ। अब वो इनमें से जौन सा भी सीक्वेंस उसका होगा कॉम्प्लीमेंट्री, उसके साथ जाके बाइंड करेगा। सपोज यहाँ पे बाइंड किया है, साथ ही ये हाइब्रिडाइज हुआ है प्रोब, और ऊपर से ये लेबल्ड है, रेडियो लेबल है तो ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, और फ्लोरेसेंट लेबल है तो ये फ्लोरेसेंस इसके ऊपर लाइट शो करेगा ये।
फिर आप इससे आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे जी कि ये वाली जो कॉलोनी है इसके अंदर आपका पर्टिकुलर जो कंस्ट्रक्ट है वो मौजूद है, जो जिसके अंदर आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। फिर आप मास्टर प्लेट पे से उस कॉलोनी को पिक करके उसको सब कल्चर करते हैं और उसको उसको आगे यूज़ करते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से ये स्क्रीनिंग डीएनए हाइब्रिडाइजेशन मेथड चलता है। से हमारे पास है स्क्रीनिंग बाय इम्यूनोलॉजिकल एसे। आपने इसके अंदर क्या यूज़ करनी है, आपने इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है प्रोटीन्स के ज़रिए। अगेन इसके अंदर वही करते हैं, मास्टर प्लेट आप बनवाते हैं अपने क्लोन्ड फ्रेगमेंट्स की, और वो वाले फ्रेगमेंट्स इसमें आप ग्रो कराते हैं जो कि प्रॉपर्ली ट्रांसफॉर्म्ड हुए होते हैं होस्ट सेल के अंदर। तो यहाँ स्क्रीनिंग मेथड आप पहले करते हैं जिसके अंदर आप अपनी ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को इसके अंदर ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल को सेपरेट करके आप ये एक मास्टर प्लेट डेवलप करा रहे हैं, जिसके ऊपर ये जो कॉलोनीज शो हो रही हैं ये शो कर रही हैं कि इसके अंदर सारी की सारी जो डीएनए है वो कौन सा वाला है, वो आपका क्लोन्ड डीएनए है, वो आपका वो सारे फ्रेगमेंट्स हैं जो कि आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से जीनोम को कट करवाया था, और वही कंस्ट्रक्ट जो है इन होस्ट सेल ने पिकअप किया है। ठीक है? इस फिर अगेन वही मेथड है कि आप मास्टर प्लेट से मैट्रिक्स पे शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे सेल्स को। वो नाइट्रोसेल्यूलोज भी हो सकती है और नायलॉन भी हो सकता है। फिर आप लाइज कराएंगे सेल को और प्रोटीन्स को मैट्रिक के साथ बाइंड करवाएंगे। इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं आपके पास अवेलेबल, वो एक पूरा प्रोसीजर है, टेक्निक्स हैं वो अलग। तो ये बाउंड प्रोटीन आपके पास आ जाएगी। इस बाउंड प्रोटीन को आप पहले ट्रीट कराएंगे प्राइमरी एंटीबॉडीज़ के साथ। प्राइमरी एंटीबॉडीज़ जब वो स्पेसिफिक है फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन, वो जाके बाइंड कर जाएगी। वो फिर आप इस प्राइमरी बॉडी एंटीबॉडी को जब आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सेकेंडरी एंटीबॉडी लगानी पड़ेगी, जिसके ऊपर ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसा अटैचमेंट है जो कि डिपिक्ट करेगी प्रेजेंस को अपनी, बाय प्रोड्यूसिंग सम कलर्स और प्रोड्यूसिंग सम रिएक्शन। सो फिर आप क्या करते हैं जी, अनबाउंड प्राइमरी एंटीबॉडी को वॉश करते हैं और आप अपने मैट्रिक्स को सेकेंडरी एंटीबॉडी से ट्रीट कराते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडी जाके प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर अटैच कर जाएगी। यहाँ पर भी आप फिर अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी को वॉश करा के फिर आप अपना जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी को विद द हेल्प ऑफ द कैलोरीमेट्री रिएक्शन। मतलब जो सा भी वो पॉजिटिव प्रोडक्शन मेथड यूज़ करेंगे, कलर डेवलप होगा, जैसे कि हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज एंजाइम अगर यूज़ हो रहा है तो वो अपनी कलर प्रोडक्शन कराता है। तो इस तरीके से फिर आप मैट्रिक्स पे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पर आपकी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो क्लोन था, ये वाली जो कॉलोनी थी, इसके अंदर आपका पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। तो उसको आप वहाँ से उठाकर सब कल्चर करते हैं, मास्टर प्लेट से उठाकर फर्दर आप उसको उसका ब्रॉथ बना के सोल्यूशन उसको आगे मज़ीद लेकर जाते हैं। ठीक हो गया? इस तरीके से आप जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी से इम्यूनोलॉजिकल स्क्रीनिंग के ज़रिए अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी, प्रोटीन एक्टिविटी। वैसे तो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन और इम्यूनोलॉजिकल एसेस जो हैं वो बहुत सारी जीन्स और जीन प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट जीन जो है वो कोई एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि नॉर्मली होस्ट सेल प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब आपका जो होस्ट सेल है उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है वो पर्टिकुलर एंजाइम प्रोड्यूस करने की, और वो एंजाइम सिर्फ आपकी जीन प्रोड्यूस कर सकती है, तो आप डायरेक्ट प्लेट ऐसे यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं लाइब्रेरी के ज़रिए कि कौन सी पर्टिकुलर जीन है जो कि वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है। इस तरीके से अल्फा माइलेज, एंडोग्लूकानेज, बीटा ग्लूकोसाइडेज और बहुत सारे अदर एंजाइम जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आपको मिलते हैं, उनको आप आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है? तो दिस अप्रोच हैज़ बीन इफेक्टिव फॉर आइसोलेटिंग जीन इनकोडिंग बायोटेक्नोलॉजिकली यूजफुल एंजाइम्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एनवायरमेंटल सैंपल। तो आप ये अप्रोच जो है वो एनवायरमेंटल सैंपल पे ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उनमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल एंजाइम्स कौन से हैं। तो सेल ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी आप प्लेटेड ऑन टू मीडियम सप्लीमेंटेड विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो आप क्या करते हैं कि जीनोमिक लाइब्रेरीज से आप वो सेल उठाते हैं जो कि पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे वो डीएनए ग्रो करेगा, सॉरी वो होस्ट ग्रो करेगा, और उस होस्ट के अंदर मौजूद जो जीन है जिसके अंदर कैपेसिटी है एंजाइम को प्रोड्यूस करने की, वो सबस्ट्रेट उसके लिए स्पेसिफिक होगा, और वो सबस्ट्रेट हाइड्रोलाइज होगा और एक कलर रिएक्शन जो है वो कॉलोनी पे प्रोड्यूस हो जाएगा जिसके अंदर आपकी टारगेट जीन होगी। ठीक है?
ये देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर क्लोन बैक्टीरियल लाइपेज जीन मौजूद है तो आपके जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोल ग्लिसरॉल जो हैं वो ग्रो कर देंगे और उसके ऊपर फ्लोरेसेंट डाई एक रोडामाइन बी लगी हुई है। तो क्या होगा कि जब वो सबस्ट्रेट हाइड्रोलाइज होगा तो पॉजिटिव कॉलोनीज जो हैं वो ऑरेंज फ्लोरेसेंट होल प्रोड्यूस कर देंगी जब आप उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट में व्यू करेंगे। अब ये मीडियम है जिसके अंदर सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम मौजूद है, माइक्रोब इस पे ग्रो भी अच्छा ये ऐसा नहीं है कि बाकी बाकी होस्ट ग्रो नहीं करेंगे, ग्रो सारे करेंगे लेकिन फ्लोरेसेंस या कलर प्रोडक्शन सिर्फ उस कॉलोनी की होगी जिसके अंदर वो पर्टिकुलर जीन है जो कि इस सब मीडिया के अंदर मौजूद एक सबस्ट्रेट को हाइड्रोलाइज करने की कैपेसिटी रखता है। सिर्फ वो कॉलोनी या वो जो है क्लोन वो कलर प्रोडक्शन देगा, वो हाइड्रोलाइज करेगा। ठीक है, तो देखें इस तरीके से वो फंक्शनल एंजाइम क्लोन जो हुआ हुआ है वो कलर प्रोडक्ट दे रहा है। अलावा हमारे पास और भी डिटेक्शन सिस्टम होते हैं क्लरीमेट्रिक के अलावा। फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल के अंदर कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड हाइड्रोलेज की जीन मौजूद मौजूद है लैक्टोबैसिलस प्लांटैरम से, ठीक है, तो उसको आप डिटेक्ट करेंगे बाय ग्रोइंग द मेंबर्स ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट। मतलब क्या है कि लैक्टोबैसिलस प्लांटैरम के अंदर एक जीन मौजूद है जो कि क्या करती है, बाइल एसिड को हाइड्रोलाइज करने की कैपेसिटी रखती है। तो इस तरह के जीन को जब आप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल को जब आप ग्रो करेंगे तो बाइल सॉल्ट की प्रेजेंस वहाँ पर होगी। तो बाइल सॉल्ट की जब वहाँ मौजूद होगा और आपकी जीनोमिक लाइब्रेरी में से कोई एक कंस्ट्रक्ट ऐसा है जिसके अंदर ये जीन मौजूद है तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोलेज पॉजिटिव कॉलोनी प्रोड्यूस कराएगा जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर एक रिंग मौजूद होगा फ्री बाइल एसिड का, क्योंकि वो उसके उस कंस्ट्रक्ट के उस क्लोन के अंदर एंजाइम मौजूद है जो कि सबस्ट्रेट मीडिया के अंदर जो बाइल एसिड मौजूद है उसको क्लीव करने की कैपेसिटी रखता है। तो वो जब कॉलोनी बनेगी तो उसके इर्द गिर्द आपको रिंग मौजूद नज़र आएगा जिसके अंदर फ्री बाइल एसिड मौजूद होंगे। तो इस तरीके से फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्क्रीनिंग मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा ये स्क्रीनिंग मेथड जो है ये थोड़ा-सा एलैबोरेटिव प्रोसेस ज़रूर है क्योंकि आपको हो इसके अंदर बार-बार ट्राई करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो आपने क्योंकि अब आपके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी सेलेक्ट हो गई है तो आपको पूरी लाइब्रेरी को थॉरोली एग्ज़ामिन करना पड़ेगा अपना पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन ये काम इसी तरह होता है और इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट हुए हुए हैं आपके पास, ठीक है चीज़ें। लेकिन अब तो एक आसानी और भी हो गई है कि इन लाइब्रेरीज़ की वजह से अब आपके पास डेटा डिटेक्ट होके आ गया। अब आपके पास बल्कि नेस्टेड पीसीआर के थ्रू जो है ना जीन्स ऑर्गेनिजम्स के जो डीएनए हैं उनको सीक्वेंस करवा के उनका डाटा जो है वो आपके पास कंप्यूटेशनल फॉर्म में अवेलेबल है जीन बैंक के ऊपर, एनसीबीआई पे और डिफरेंट आपके पास जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उन सब के ऊपर ये डाटा अवेलेबल है अब। तो ये लेकिन इनिशियली जब ये काम हो रहे थे जीनोमिक लाइब्रेरी आज भी मौजूद हैं फिज़िकली डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के पास डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। तो वो इसी तरीके से वो प्रोसेस जो हैं एवेलुएट एवॉल्व हो के आपके पास चीज़ें जो आजकल मौजूद हैं वो आजकल जो चीज़ों की शक्ल है वो इन्हीं सारे प्रोसेस से गो थ्रू हो के आई हुई है। और यही वजह है कि हम जब आज लैब में कोई भी प्रोटीन आइसोलेट करने लगते हैं तो हमारे पास उसके अवेलेबल प्रोटोकॉल्स मौजूद होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि उनके ऊपर बेसिक काम जो है उनकी बेसिक आइडेंटिफिकेशन हुई हुई है। अब आपने सिर्फ आगे उनको उनकी फंक्शनल एस्पेक्ट देखना है या उनके फंक्शन को और इन्हांस करना है पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, ये आजकल का ज़्यादा प्रॉमिसिंग काम है। अब टॉकिंग अबाउट द cDNA लाइब्रेरी, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को की लाइब्रेरीज डेवलप करने के लिए अलग मेथड्स हैं क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर आपके पास इंट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं। तो अगर आप इंट्रॉन्स को भी cDNA सॉरी लाइब्रेरी में इन्वॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एक बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंसिव डेवलपमेंट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जो है कम्बरसम भी है और लेबर इंटेंसिव भी है और आपके रिसोर्सेज जो हैं उनको वेस्ट करने वाली बात है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया गया कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कॉपीज़ बनाई गई फ्रॉम द प्योरीफाइड मैसेंजर आरएनए। अब हम सबको पता है कि यूकैरियोटिक जीन्स जो हैं उनके मैसेंजर आरएनए जब बनते हैं तो उनके अंदर से
एक्सॉन्स सिर्फ जो इंट्रॉन्स होते हैं वो स्प्लाइस आउट हो जाते हैं और मैसेंजर आरएनए विद एक्सॉन्स जो है जिसके अंदर फंक्शनल जीन है वो इकट्ठा बनता है जिसके तो सी डीएनए लाइब्रेरी के अंदर यही अप्रोच यूज़ की गई है कि मैसेंजर आरएनए प्योरीफाई करके जिनके अंदर इंट्रॉन्स नहीं हैं आप उससे सी डीएनए बनाते हैं उस मॉलिक्यूल का और फिर उस सी डीएनए को आप वेक्टर में इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए को नहीं करेंगे। मैसेंजर आरएनए एज अ टेम्पलेट यूज़ करके आप सी डीएनए बनवाएंगे और सी डीएनए को फिर आप वेक्टर में क्लोन करके डीएनए लाइब्रेरीज बनाएंगे। तो इस तरह की लाइब्रेरीज को हम सी डीएनए लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, तो और सी डीएनए लाइब्रेरी जो है वो रिप्रेजेंट किसको करती है, मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस को करती है। और ऑब्वियसली ये फिर स्पेसिफिक टिश्यू रिलेटेड होता है। एक एमआरएनए जिसकी आप बात करें वो टिश्यू स्पेसिफिक होता है इस केस में। ठीक है, तो एमआरएनए मॉलिक्यूल्स को क्लोन करने से पहले उनको डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पहले यूज़ होता है जो कि मैसेंजर आरएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करता है और फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है उसकी एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है और सेकंड स्ट्रैंड सिंथेसाइज करवाया जाता है। इस तरीके से ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और उसको फिर आगे वेक्टर में इंसर्ट करवा के उसके डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं और डिफरेंट होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट एमआरएनएज फॉर टिश्यू स्पेसिफिक ओरिजिन के आप क्लोन करते हैं। हमारे पास एक इसकी पिक्टोरियल इमेज है जिसके अंदर ये देखिए डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक है जीन है जिसके अंदर एक्सॉन भी हैं और इंट्रॉन्स भी हैं। तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है सेल के अंदर, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनता है जिसके अंदर अगेन इंट्रॉन्स मौजूद होंगे। इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं, एक्सॉन स्प्लाइस होते हैं और ये एक मैसेंजर फंक्शनल मैसेंजर एमआरएनए बनता है। इस एमआरएनए को फिर आइसोलेट करवा के इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की के ज़रिए इसकी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंथेसिस होती है और फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है विद द यूज़ ऑफ ई कोलाई पॉलीमरेज 1। और फिर ये आपके पास डीएनए डीएनए है विदाउट इंट्रॉन और ऑब्वियसली ये जो डीएनए है ये किसी एक प्रोटीन को या किसी एक फंक्शनल जीन को डिपिक्ट कर रहा है जो कि टिश्यू स्पेसिफिक है। तो इस तरीके से आपकी जो है यूकैरियोटिक ओरिजिन की जो जीन्स हैं उनको क्लोन किया जाता है और उनको उनकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज डेवलप की जाती हैं। एंड थैंक यू सो मच। इसके साथ ही ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है जिसके अंदर हमने जेनेटिकली डिस्कस किया है कि क्या क्या अप्रोचेज़ हैं हमारे पास जिनको हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। अभी तो और भी बहुत सारी हैं लेकिन ये एक ब्रीफ आपको आउटकम दे दिया। बाकी हम जोन सी एप्लीकेशंस पढ़ेंगी उनके अंदर मज़ीद उनकी हम जो टेक्निक्स हैं और जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उनको डिस्कस हम साथ साथ करते जाएंगे। ये आपको एक बैकग्राउंड ओवरव्यू दे दिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कि उसके अंदर ये उसकी चीता आप कह लें ना चीदा चीदा चीज़ें आपके साथ डिस्कस की गई हैं। तो इनको आप थॉरली स्टडी करें और इंशाल्लाह इसमें कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो आप यू कैन आस्क। ओके क्लास, नाउ थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।